Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is our lecture of object-oriented programming using C++. Now, in our previous lecture, we started our unit 4, that is pointer and polymorphism in C++. Okay. So, in our previous lecture, we learned about pointer. Okay. Now, what is pointer? Tell me, what is pointer? Now here the pointer is a variable. Now pointer is a just variable that hold the value address of the another variable. पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, बट वो क्या स्टोर करता है? वो दूसरे हमारे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. ओके, सो वो हम लोग वो जो पॉइंटर में जो भी एड्रेस है उसके बिहार पे हम लोग को कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो हम लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. So basically pointer is just a variable that hold the address of the another variable. Okay, then we learn how to define our pointer. Now to define pointer we have to use the asterisk symbol, and if you want to access the address of the variable then we can use our asterisk operator. Okay, then in our previous lecture we learn about pointer in array, then pointer in string, then pointer of the derived class. Okay, so all these topics that we covered in our previous lecture. Now our today's topic we are going to discuss about polymorphism, then types of polymorphism, comparison of runtime and compile time polymorphism. Okay, so these topics we are going to cover in this lecture. Now first of all we'll start with what is polymorphism. Now in our first lecture we learn in our first unit we learn about the different features of our object oriented programming. Here the abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphism, these are the important features and concept of our object oriented programming. Okay, so from that in our previous unit we learn about inheritance. Okay, so in this unit we are going to learn about polymorphism. So polymorphism, it is also an important feature of our object oriented programming. Now this polymorphism that is made with two words. Now this polymorphism that is a Greek word. वो क्या है? Greek word है और वो दो वर्ड से बना है. फर्स्ट है पोली एंड दूसरा है मॉर्फिज्म. तो देखो यहाँ पे पोली का मीनिंग क्या रहता है? पोली का मीनिंग है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मीनिंग है फॉर्म. सो इट सिंपली मीन्स दैट वन नेम मल्टीपल फॉर्म. पोलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक्वायरिंग इन डिफरेंट फॉर्म. मतलब उसका नेम एक ही रहेगा बट उसको है इन अ मल्टीपल फॉर्म. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है. ओके, तो उसके डेली लाइफ में वो डिफरेंट फॉर्म में रहता है. फॉर एग्जांपल he can be the husband, he can be the father, he can be the brother, and at the same time it can be the employee. Okay, so here the person that is only one but it perform different role in their daily life. Okay, so similarly polymorphism का मीनिंग भी रहता है कि वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म. polymorphism का मीनिंग क्या है? वन नेम मल्टीपल फॉर्म. So polymorphism is implemented by using the overloaded function and operator. Now how we can implement our polymorphism? If you want to implement your polymorphism then you have to overload your function, otherwise you have to overload your operators. Okay, so here the overloaded function were selected for invoking by matching the argument, both types and number. देखो फॉर एग्जांपल आप लोग ने पोलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ ओवरलोडिंग फंक्शन. तो कैसे आप लोग इन फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन आप लोग को इन्वोक करना है? तो आप लोग इन्वोक कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट. मतलब कितने आर्ग्यूमेंट आप लोग ने पास की है इन योर फंक्शन, उसके बिहाफ पे आप लोग इन्वोक कर सकते हो योर फंक्शन. ओके, सो बेसिकली पोलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है?
दैट मीन्स द वन नेम, उसका नेम एक ही रहेगा बट उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहेंगे. दैट इज एन important features of our object oriented programming. Okay, now we will see the types of polymorphism. Now there is mainly two types of polymorphism, that is compile time polymorphism and runtime polymorphism. So here the compile time polymorphism, that is known as a static binding, then static linking. Okay, and this runtime polymorphism, that is known as a late binding. Okay, and it is also known as a dynamic binding. So see here the diagram. This diagram shows the classification of our polymorphism. Now this polymorphism first divided into two parts. कौन कौन से जो हम लोग ने अभी देखे हैं, एक तो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. ओके, कंपाइल टाइम को आप लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हो, अदरवाइज स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक लिंकिंग. ओके, देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज नोन एज द लेट बाइंडिंग, और यू कैन से द डायनेमिक बाइंडिंग ऑल्सो. ओके, देन this compile time polymorphism, that is further divided into two parts. कौन कौन से पार्ट वो, एक तो आप लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ओवरलोड योर ऑपरेटर्स. ओके, देन रन टाइम polymorphism, that is achieved by virtual function. So this is the classification of our polymorphism, that is compile time polymorphism and runtime polymorphism. Okay, and then our next topic, now we are going to discuss about these two types of polymorphism. So first we will start with compile time polymorphism. Okay, तो क्या होता है compile time polymorphism? So here the information is known to the compiler at a time, compile time, and therefore compiler is able to select the appropriate function for particular call at the compile time itself. Okay, that's why it is called as a early binding or static binding or static linking, or you can also say that the compile time polymorphism. Okay, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कंपाइलर रहता है वो क्या करता है, कंपाइल करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो उसको इन्फॉर्मेशन कब फाइंड होती है, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब. तो जो भी हमारा कंपाइलर रहता है तो उसको कोई कौन से फंक्शन कॉल के साथ कौन सा फंक्शन इन्वोक करना है वो कब पता चलता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. कब से पता चलता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. ओके, that's why it is called as a compile time polymorphism. So here early binding simply means that the object is bound to its function call at a compile time. उसको अर्ली बाइंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बाइंड करते हैं हमारे फंक्शन कॉल के साथ, वो कब, एट अ कंपाइल टाइम. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म. ओके, सो हियर यू कैन सी जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ना उसमें कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म. ओके, सो हियर कंसिडर, यू कैन कंसिडर वन एग्जांपल हियर. Consider the situation where the function name and prototype is same in both the base and derived class. देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका नेम है और प्रोटोटाइप है वो सेम है, एक तो बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास में भी. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस क्लास है क्लास ए एंड इट हैज़ वन डेटा मेंबर दैट इज़ इंटीजर एक्स एंड वन फंक्शन दैट इज़ वॉइड सो, और दूसरा हमारे पास बेस क्लास है दैट इज़ बी. सो क्लास बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पब्लिक ए, तो उसमें भी सेम फंक्शन है शो फंक्शन. ओके, तो हमारे पास देखो एक तो हमारा बेस क्लास है और दूसरा है हमारा डिराइव क्लास, दोनों में सेम क्लास फंक्शन है, कौन सा, शो फंक्शन. तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा ऐसी सिचुएशन जब होगी, सो वेयर द फंक्शन नेम एंड प्रोटोटाइप इज सेम इन द बोथ एंड बेस एंड डिराइव क्लास, since the prototype of the function is the same in both and place, the function is not overloaded and therefore static dynamic does not apply. So in such case appropriate member function is selected while programming is running. This is known as a runtime polymorphism. देखो यहाँ पे हम लोग ने अभी पढ़ा कि हमारा compile time polymorphism,
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या रहता है कि कंपाइलर को पता चलता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो उसको कौन सा फंक्शन इन्वोक करना है। बट यहाँ पे देखो एक सिचुएशन है हमारे पास कि हमारे पास दोनों बेस क्लास है और डिराइव क्लास है, दोनों में कौन सा क्लास, दोनों में फंक्शन नेम सेम है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग कोई भी कंपाइल करते हैं प्रोग्राम तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन उसको इन्वोक करना है। तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ अवर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होगा, इन सच केस द अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन इज सिलेक्टेड while program is running. This is known as a runtime polymorphism. देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में सेम फंक्शन है ना, तो कंपाइल टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। बट जब हम लोग हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंपाइल को कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, so here C++ support a mechanism known as a virtual function to achieve runtime polymorphism. Now runtime polymorphism हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, by using virtual function। जैसे हम लोग ने अभी देखा कि compile time polymorphism अचीव कर सकते हैं with the help of function overloading and function operator overloading। वैसे ही हमारा runtime polymorphism कैसे implement कर सकते हैं हम लोग, by using runtime virtual function। Okay, so at a runtime when it know what class object are under consideration, the appropriate version of the function is invoked. Since the function is linked with a particular class much later after compilation, so this process is termed as a late binding or you can say dynamic binding। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग हमारे पास एक तो बेस क्लास है और डिराइव क्लास है, दोनों में सेम फंक्शन है, सो फंक्शन। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन हम लोग को यूज़ करना है, तो जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का हम लोग वो फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो वो हम लोग को कब पता चलता है, रन टाइम पे, वो हम लोग को कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग, क्योंकि हम लोग को कौन सा फंक्शन इन्वोक करना है वो कंपाइल टाइम पे पता नहीं रहता है। ओके, सो ये जो सिलेक्शन होता है वो डायनेमिकली होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डायनेमिक बाइंडिंग, क्योंकि जो भी सिलेक्शन है दैट इज़ नोन एज अ डायनेमिकली। ओके, नाउ हियर द डायनेमिक बाइंडिंग इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर इन C++। दिस रिक्वायर द यूज ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। देखो ये डायनेमिक जो बाइंडिंग है दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर C++। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, वी हैव टू यूज़ अवर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ओके, जो हम लोग ने पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पहले हम लोग ने पढ़ा है हमारे लास्ट लेक्चर में, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो देखो यहाँ पे वन फॉर एग्जाम्पल इज गिवन। First you have to write down header file, then class A that is integer x public, then virtual void show। okay, similarly class B है हमारा, वो डिराइव हुआ है क्लास A से, so that is our डिराइव क्लास। so integer y public void show। तो यहाँ पे हम लोग को मेन मेथड में क्या लिखना पड़ेगा, you have to use the object of your base class। so A दैट इज़ AQ, देन B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है BB, देन A का हम लोग ने पॉइंटर क्रिएट किया दैट इज़ A*P। फिर हम लोग ने क्या किया, P को इनिशियलाइज किया है विद द एड्रेस ऑफ A। सो P इज इक्वल टू एम्परसेंड AA। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर AQ लिखा है नीचे A है, तो आप लोग वो देख लेना। ओके, देन P A पॉइंटर से सो, देन B इज इक्वल टू एम्परसेंड BB, और वो हम लोग दूसरी मेथड यूज़ करेंगे वो है शो के। तो ये डायनेमिक बाइंडिंग अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन, और उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो ना समझ में आया क्या होता है हमारे
ये पोलीमॉर्फिज्म मतलब कि वन नेम एंड डिफरेंट फॉर्म। उसके दो टाइप्स है, दैट इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या रहता है कि कंपाइलर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म। एंड जो रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो भी फंक्शन इन्वॉक होता है वो क्या होता है, डायनेमिकली इन्वॉक होता है और एट अ टाइम ऑफ रनिंग योर program. That's why it is called as a runtime polymorphism. Okay. Now we will see the comparison between our runtime polymorphism and compile time polymorphism. Now in compile time polymorphism, call is resolved by the compiler. जो कॉल है वो क्या होता है, वो रिजॉल्व होता है बाय द कंपाइलर. Now in runtime polymorphism, the call is not resolved by the compiler. Then second difference, now compile time polymorphism it is known as a static binding, early binding or overloading as well. While this runtime polymorphism that is known as a dynamic binding or you can say late binding or overriding. देखो compile time polymorphism को क्या बोलते हैं, overloading, while रन टाइम को क्या बोलते हैं, overriding. ओके, तो देखो overloading क्या होता है. Now overloading is a compile time polymorphism where more than one method share the same name with a different parameter और signature and different return type. इसमें क्या रहता है कि ओवरलोडिंग पोलीमॉर्फिज्म में दो फंक्शन के नेम सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल सो है, ओके, दोनों के नेम सेम रहेंगे पर उसके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लोग पास करते हो फिर उसका रिटर्न टाइप है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सिर्फ उसका नेम ही सेम रहेगा. ओके, वेल ओवरराइडिंग क्या होता है, इट इज़ अ रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म हैविंग द सेम मेथड विद द सेम पैरामीटर और सिग्नेचर बट एसोसिएट इन अ क्लास एंड इट्स सब क्लास. देखो हम लोग ने यहाँ पे देखा जैसे एग्जाम्पल में, तो ये सो मेथड क्या था, दोनों में सेम ही है, उसका नेम भी सेम है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, उसका पैरामीटर भी सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरराइडिंग बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग. Then next say it is achieved by function overloading and operator overloading. ना compile time polymorphism हम लोग कैसे अचीव करते हैं, बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर्स. ओके, देन compile time polymorphism provide fast execution because known early at a compile time. Now कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाता है, कब, एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन. तो ये क्या रहता है, उसका एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होता है. और जो ये रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म है वो उसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है. क्यों, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी फंक्शन इन्वोक करना है वो कब आइडेंटिफाई होता है, एट अ टाइम ऑफ रनिंग. ओके, वो रन टाइम पे हमको पता चलता है, दैट्स व्हाई इट इज़ slow execution. Then compile time polymorphism is a less flexible as all the things execute at a compile time. देखो compile time polymorphism जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसमें क्या रहता है कि पूरा कोड भी एग्जीक्यूट करना रहता है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, दैट्स वाई. देन रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म इज मोर फ्लेक्सिबल एज ऑल थिंग्स एग्जीक्यूट एट रन टाइम. देखो तो ये जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज लेस फ्लेक्सिबल, वेल दिस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल. सो ये क्या है, आपका डिफरेंस है बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइलर को कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. और जो भी फंक्शन इन्वॉक करना है वो डायनेमिकली जब इन्वॉक होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स one name and many forms. Okay, then there is mainly two types of our polymorphism, that is compile time and run time polymorphism. compile time polymorphism को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ली बाइंडिंग और यू कैन से स्टैटिक लिंकिंग और स्टैटिक बाइंडिंग. while run time polymorphism that is known as the dynamic binding. Okay, so
ये टॉपिक हम लोग ने आज हमारे आज के लेक्चर में कवर किए. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.